Good evening, everyone. Welcome to my YouTube channel. That's Ma Bhagwati classes, and today in this class, I'm gonna discuss about some important questions related to Indian economic development. So let's get started. So the first question is: you are a factory owner and have given employment to 400 workers. If 10 workers are dismissed by you without loss of production, then this situation will be described as, ठीक है, आप एक फैक्ट्री ओनर हैं और आपने 400 वर्कर्स को नौकरी दिया है। अगर उसमें से 10 वर्कर्स को आप डिसमिस कर देते हैं बिना प्रोडक्शन में कोई लॉस हुए बिना, तो उस सिचुएशन को आप क्या कहेंगे? तो वो है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। सो द करेक्ट आंसर इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट, the government can achieve its budget objective of redistribution of income by managing the general price level in the economy to the desired level. Second, increase the gross domestic product of the economy. C, bringing the production of goods and services under its direct and absolute control. And D, rationalization of taxes in pro-poor direction. So the right answer is D, rationalization of taxes in pro-poor direction. Next, third question. Arrange the following government policy in chronological order and choose the correct alternatives. A, study group formed by Planning Commission for Poverty. B, task force on projections of the minimum needs and effective consumption demand. C, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act. And D, Jandhan Yojana. ये आपको ये दिया हुआ है, इसे आप एक ऑर्डर में लगाना है आपको। तो इसका करेक्ट जो ऑर्डर है वो कौन सा है? सबसे पहला है टास्क फोर्स ऑन प्रोजेक्शन ऑफ द मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजप्शन डिमांड। नेक्स्ट, जनधन योजना। नेक्स्ट, स्टडी ग्रुप फॉर्म्ड बाय प्लानिंग कमीशन फॉर पॉवर्टी। एंड जो लास्ट में जो आएगा वो है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो इसमें कौन सा आ जाएगा? सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड। So the right answer is fourth option. Fourth option is the correct answer. Next, fourth question. State any one area in which Pakistan has an edge over India. A, Pakistan has achieved better results with regard to migration of workforce from agriculture to industry. B, Pakistan ranks high in Human Development Index. C, Pakistan has low death rate. And D, none of the above. So the correct answer is A. Pakistan has achieved better result with regard to migration of workforce from agriculture to industry. Next question is identify the incorrect statement from the following. A, diversification in agriculture sector provides sustainable livelihood rural population. B, diversification includes change in cropping pattern, shift of workforce from agriculture to other allied activities and non-agriculture sector. C, objective of investment in new agricultural avenues, non-farm activities, increases financial risk for the rural population. And D, diversification reduces the proportion of unemployed population in the rural areas to considerable limits. So the right answer is objectives of investment in new agricultural avenues increases financial risk for the rural पॉपुलेशन। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट असर्शन एंड रीजन। ठीक है, ये असर्शन और रीजन दिया हुआ है, हमें इसमें बताना है कि ये असर्शन और रीजन है, इन दोनों में से कौन सा ट्रू है। ठीक है, या फिर दोनों ही ट्रू हैं या फिर दोनों ही फॉल्स हैं। और अगर दोनों ही ट्रू हैं और रीज़न इसको फॉलो कर रहा है तो ये भी हमें, मतलब रीज़न इसके लिए सही है तो ये हमें बताना है। जैसे इसमें दिया जाता है ऑप्शन क्या क्या होता है वो मैंने इसमें लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। इसमें जो ऑप्शन दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। मतलब या इसमें बोलते हैं कि असर्शन और रीज़न दोनों ही ट्रू हैं और जो रीज़न है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ये पहला ऑप्शन होता है। दूसरा,
असर्शन और रीज़न दोनों ही ट्रू है, लेकिन रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा, असर्शन ट्रू है और रीज़न फॉल्स है। और जो चौथा है वो है असर्शन फॉल्स है और रीज़न ट्रू है। तो ये 4 ऑप्शन दिए जाते हैं जिसमें आपको इसमें फाइंड आउट करना पड़ता है कि कौन सा सही है। ठीक है, अब इसमें दिया हुआ है असर्शन, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज कंसिडर्ड एज वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। असर्शन बिल्कुल ठीक है। रीज़न, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट डज नॉट अकर ड्यू टू अ शॉर्टेज ऑफ जॉब, ये भी ठीक है। तो मतलब assertion and reason are true, both assertion and reason are true, and the reason is the correct explanation of assertion. Clear है? Next, read the following statement, assertion and reason. assertion and reason में इसमें दिया हुआ है ग्रीन revolution leads to changes in rural credit system. Okay, and reason, green revolution led to diversification of the portfolio of rural credit towards production oriented lending. तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें आएगा। ठीक है, इसमें जो असर्शन दिया हुआ है, ठीक है, इसमें जो असर्शन है वो ट्रू है और रीज़न भी ट्रू है, और जो रीज़न है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्लियर है? नेक्स्ट, 8th, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन एंड रीज़न। असर्शन दिया है देयर इज़ नो एविडेंस टू प्रूव दैट इंक्रीज इन ह्यूमन कैपिटल कॉजेज इकोनॉमिक ग्रोथ। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत दिया है, तो असर्शन यहाँ पे क्या है? फॉल्स है। रीज़न क्या है? क्वालिटी ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशनल सर्विस इज़ डिफ़िकल्ट टू मेज़र। रीज़न सही दिया हुआ है, लेकिन असर्शन क्या दिया है? गलत दिया है। तो यहाँ पर ये क्या बता रहे हैं? असर्शन इज़, क्या बता रहे हैं? असर्शन इज़ फॉल्स एंड रीज़न इज़ ट्रू। क्लियर है? ये है इसका ऑप्शन। नेक्स्ट, 9th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ MSME सेक्टर। A, it is suited for the utilization of local resources. B, it is helpful in creation of employment opportunity. C, it requires more capital than labor. And D, it ensures equitable distribution of income in the country. तो हमें बताना है इसमें कि इसमें कौन सा एडवांटेज MSME सेक्टर का नहीं है। तो इसमें जो मतलब जो हमें बताना है कि इसमें एडवांटेजेस नहीं है वो है सी, इट रिक्वायर्स मोर कैपिटल एंड देन लेबर। तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन क्या है कि इसमें जो ये वाला जो सी है, इट रिक्वायर्स मोर कैपिटल देन लेबर, ये MSME सेक्टर का एडवांटेज नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, MSME सेक्टर सफ़र टू अ लार्ज एक्सटेंट इन COVID-19 पेंडेमिक सिचुएशन ड्यू टू डैश। इसमें हमें बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा वो हमारा, मतलब इसमें मैंने वो नहीं दिया हुआ है आपको ऑप्शन, इसको आपने ऐसे ही डैश फिल करना है, ये 1 मार्क्स में आता है ये। इसका जो आंसर होगा वो है लिक्विडिटी क्रंच। ठीक है, लिक्विडिटी क्रंच, ये इसका आंसर रहेगा। ठीक है, और पेंडेमिक की स्पेलिंग थोड़ा सही कर लेना, पेंडेमिक की स्पेलिंग इसमें गलत दी गई है। पेंडेमिक की स्पेलिंग आप सही कर लेना, PANDEMIC, ये इसकी स्पेलिंग रहेगी। ठीक है, PANDEMIC। क्लियर है? तो ये है इसका आंसर। MSME सेक्टर सफ़र टू अ लार्ज एक्सटेंट इन COVID-19 पेंडेमिक सिचुएशन ड्यू टू लिक्विडिटी क्रंच। लिक्विडिटी क्रंच, CRUNCH, क्रंच। क्लियर है? एंड आई होप जो मैंने आपको समझाया वो आपको समझ में आया हो। अगर आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट्स तक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पहुंच पाए और भी स्टूडेंट्स की मैं हेल्प कर पाऊँ। एंड अगर कोई आपका कोई डाउट है या कोई पॉइंट मिस हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी आप बता सकते हैं। And that's all for today. If you like my video, then hit the like button, share with your friends, and don't forget to subscribe my channel. Thank you.